Hello, Jai Hind, Vande Mataram. Again, in the last video, we have discussed about the My Mistress Eyes Are Nothing Like the Sun, that is written by famous British writer and Elizabethan writer William Shakespeare. In this sequence, in this video, we are going to discuss about the William Shakespeare's sonnet number 138, When My Love Swears That She Is Made of Truth. In the starting, we will discuss about the introduction of William Shakespeare. He is the greatest dramatic in English poetry. He also wrote 154 sonnets that is mentioned in the PDF also. 154 sonnet, and most of the sonnets are about the love, beauty, time, truth and betrayal, and human weakness. In the sonnet number 138 is a part of Dark Lady sonnet sequence, is sonnet number 127 to 154 sonnet till 154 sonnet number 154. All sonnets are dedicated to a dark lady. Before that sonnet, from 127, before 127 sonnet are dedicated to an unknown young man. Okay, this poem presents the realistic imperfect relationships के बारे में बात करती है, जहाँ दो लवर्स एक दूसरे से both two lovers are lie to each other and continue relationship. In the present time also we can see in our society, two lovers live with each other and they are lying continuous for their external affairs, and they both know she's lying to me, and she also knows that he is lying to me, but they are also living with each other as according to their consent. Now सोनेट का टाइटल, मीनिंग क्या है? व्हेन माई लव स्वेयर्स, व्हाट डज इट मीन? स्पीकर लवर, स्पीकर को एक लवर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है. स्पीकर्स रिप्रेजेंटेड एज ए लवर. ट्रूथफुल एंड फेथफुल, speaker shows himself that he is a truthful man and he is a faithful man towards her beloved. Shakespeare knows she lies. बट जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है? शेक्सपियर. जो राइटर है वो स्पीकर है. ही नोज दैट शी लाइज टू मी. both of them knows that they are lying to each other. He pretends believes her. वो कहता है कि जो उसकी प्रेमिका बिलव्ड है वो सोचती है आई एम ट्रूथफुलनेस अगेंस्ट फॉर हिम. वो सोचती है कि वो मेरे लिए, मैं उससे सत्य बोल रही हूँ, और वो जो उसका बिलव्ड है वो भी सोच रहा है वो मेरे से सत्य बोल रही है, और एक दूसरे को लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रिटेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हैं. इसका टाइटल्स किन किन रूपों में? लव के बारे में, लव, लाइज मतलब झूठ के बारे में, म्यूचुअल डिपिक्शन के बारे में बताया गया. ह्यूमन की वीकनेस क्या है? लव के अंदर एक दूसरे से झूठ बोलना. ओके, सोनेट में we will discuss about the background of the sonnet. Okay, this sonnet is different from the ideal romantic poetry. जो रोमांटिक पोइट्री है उनके जो आइडियल्स हैं उनसे डिफरेंट है. ट्रेडिशनल लव पोएम्स को फॉलो करता है. शेक्सपियर डज नॉट पैराइज ब्यूटी एंड प्योरिटी. शेक्सपियर ने कभी भी ब्यूटी और प्योरिटी पर कभी फोकस नहीं किया. ही प्रेजेंट्स लव रियलिस्टिकली. जो रियल लव है उसके बारे में बात की कि लव की जो रियलिटी है वो क्या होती है. जो लव होता है उसके अंदर लोग एक दूसरे से किस तरीके से झूठ बोलते हैं. इन द लास्ट पोएम वी हैव आल्सो सीन दैट हाउ ही प्रेजेंट्स हिज बिलव्ड, एक्सप्लेन्स एवरीथिंग in a simple ways. He tells truth to her beloved. Okay, everything in a complexity way. He also follow the feminist interpretation in that poem that we have read in a last video. My mistress eyes are nothing like the sun. Okay, he never objectified women in his poems. बोथ लवर्स डिसीव, एक दूसरे, बोथ लवर्स जो बिलव्ड प्रेम और प्रेमिका है, बोथ बिलव्ड एक दूसरे को करते डिसीव करते, धोखा देते हैं एक दूसरे को.
और इमोशनल कंफर्ट के बारे में बात करते हैं. फॉर द इमोशनल कंफर्ट दे बोथ सी ही एंड सी स्पीकर एंड हर बिलवड आर डिसीव टू ईच अदर. What is the reflection of the poem? What does this poem says for our society? Psychological realism के बारे में he talks about psychological realism. What is the psychological realism? Psychology means they are telling what's going on and which things are going their brains. Mature relationships के human insecurity, how human feel insecurity to his or her beloved. How they never trust to each other. Okay. Now we will discuss the stanza. Sonnet 138. My mistress' eyes are nothing like the sun by William Shakespeare. Okay. How it works? When my love swears, when my love swears that she is made of truth. When my love swears that she is made of truth. Okay, that she is made of truth. When my love swears that she is made of truth. Okay, I believe her that I know. I believe her that I know she lies. I know she lies. She lies. I know she lies. Okay, that she might think some untortured youth, unlearned in the world false subtitles, thus vainly thinking that thinks me young, although she knows my days are past the past. My days are past the past. Simply I credit her false speaking tongue. On both sides, thus is the simple tortured suppressed. But wherefore says she not she's unjust, and wherever say not I, that I am old. Oh, love's best habit in seeming trust, and age in love not have ears told. Therefore I lie with her and she with me, and in our folds by we fluttered be. Okay, now we will see the line to line explanation. Okay, let's begin to line explanation. When my love, when यानी जब, my love swears, जब मेरे लव अपने आप की सौगंध लेता है, swear she is made of truth, जब मेरी प्रेमिका कहती है कि वह सत्य बोल रही है, हर चीज़ वह सच बता रही है. ही इज़ टेलिंग ट्रूथ एट एवरी टाइम. आई डू बिलीव हर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ. क्या? आई बिलीव हर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ. बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो पोएम है ना वो पब्लिश हुई है कम 1509 में. ओके, 1509 में पोएम पब्लिश हुई है. और ऑनेस्टी और जो लव है ना वो पैशनेट पिलग्रिमेज के अंदर पब्लिश हुई है. किसके अंदर? 1509 में पैशनेट पिलग्रिमेज में ऑनेस्टी और जो लव है ना उसके बारे में बात करती है. लेट्स बिगिन. मैड ऑफ ट्रूथ मतलब मेरी प्रेमिका हमेशा वो सोचती है वो सत्य बोल रही है. आई डू बिलीव हर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ. दो यद्यपि आई नो सी लाइज, मैं जानता हूँ कि वो मेरे से झूठ बोल रही है, उसके बाद भी मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि वो सत्य बोल रही है. दैट सी माइट थिंक, दैट की सी यानी वह, माइट शायद, माइट सोचती है, थिंक सोचती है, मी सम अनटॉर्चर्ड यूथ. अनटॉर्चर्ड यूथ मतलब ए अनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन. अनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन. ओके, कि मैं एक गैर अनुभवी क्या हूँ, व्यक्ति हूँ, एक युवा व्यक्ति हूँ. अनलर्नड, अनएजुकेटेड हूँ. इन द वर्ल्ड फोल्ड सबटाइटल्स, इन द वर्ल्ड्स फोल्ड सबटाइटल्स, मैं वो ऐसे वो मेरे को एक अनएक्सपीरियंस और अनुभवहीन व्यक्ति समझती है, एक अनएजुकेटेड व्यक्ति समझती है. वर्ल्ड फोल्ड सबटाइटल, और मुझे एक ना समझ व्यक्ति समझती है. थस वेनली थिंक, थस इस प्रकार से, वेनली व्यक्त करता हूँ मैं, थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग, और इस प्रकार से ये चीज़ें मेरे को क्या करती है, वो सोचती है कि थस वेनली ये सब चीज़ें व्यर्थ है. दैट सी थिंक्स मी यंग,
वो मेरे को क्या करती है, एक यंग समझती है, और एक क्या करती है, एक अनअट्रैक्टिव व्यक्ति समझती है। अनअट्रैक्टिव, अब मेरी एज के अकॉर्डिंग वो मेरे को क्या करती है, एक अनअट्रैक्टिवनेस व्यक्ति समझती है मेरी एज के अनुसार। ऑल्दो यद्यपि सी नोज, वो जानती है, माई डेज आर पास्ट एंड बेस्ट, वो मेरे से कहती है कि सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, वो उसकी जो जबान है, उसकी झूठी जबान है, उस जबान से वो मेरे को फॉल्सिफाई करते हुए कहती है कि जो मेरे पुराने दिन थे वो क्या थे, अच्छे थे। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, वो उसकी जो पुरानी जबान है उससे वो झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे पुराने दिन अच्छे थे। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, ऑन बोथ साइड, थस इज सिंपली ट्रूथ सप्रेस्ड, क्या कहा गया, उसने क्या है, दोनों साइड को, झूठ को क्या गया है, दबाया गया है। इसके अंदर किसका यूज किया गया है, अलिट्रेशन का यूज किया गया है। सिंपल और साइड्स, मतलब रिपीटेशन हो रहा है इन दोनों में, तो इट मीन्स हियर राइटर यूजिंग अलिट्रेशन, सप्रेस। बट वेयरफॉर सेज सी इज नॉट अनजस्ट, सी इज नॉट अनजस्ट, मतलब वो मोरली तरीके से क्या नहीं है, झूठी नहीं है। वो इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं कि वो मोरली तरीके से क्या नहीं है, अनजस्ट, मतलब सी इज नॉट लाइंग, वो ये मानती है कि वो लाइंग मतलब झूठ नहीं बोल रही। एंड वेयरफॉर से नॉट दैट आई एम ओल्ड, वो कहती है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है। इस चीज़ को लेकर वो तंज कसती है। ओह लव, ओ मेरी प्रेमिका, हैबिट इज ए सीम ट्रूस्ट, जो प्यार की जो हैबिट है ना, वो एक तरीके से ट्रूथनेस को लेकर रिप्रेजेंट करता है, वो एक सच्चाई को, और प्रेमिका की जो सच्चाई है उन चीज़ों को लेकर क्या करता है, वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। एंड एज इन लव, प्यार की एक उम्र होती है। लव इज़ नॉट हैव ईयर्स ओल्ड टोल्ड, प्यार कभी भी है ना जो एज के साथ साथ क्या नहीं होता, बुढ़ा नहीं होता। द लव रिमेनिंग सेम एट द टाइम ऑफ यंग एज एंड एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज। देयरफॉर, फिर भी, we have discussed all the quotients, now we are going to discuss about the couplets, these both are couplets। therefore I lie with her, she with me, मैं उससे झूठ बोलता हूँ और वो मेरे से झूठ बोलती है। and over faults by lie flattered, और वो एक दूसरे के ऊपर वो चीज़ें चलती जाती है और ना एक दूसरे की चापलूसी में वो चीज़ें खोती रहती है। इन दिस पोएम द राइटर यूजिंग, किस चीज़ का यूज़ कर रहा है राइटर, इसमें जो स्ट्रक्चर है, इसका पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो किस में, आयम्बिक पेंटामीटर में लिया गया है, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। और जो इसकी जो सारी लाइंस है, इसकी जो लाइंस है, मतलब इसकी पोएम की जो लाइंस है, उसमें ईच लाइंस 5 सेट्स, हर लाइन के अंदर 5 सेट्स का यूज किया गया। किसका, 5 सेट्स का यूज किया गया है, 5 सेट्स का यूज किया गया है। जिसमें फर्स्ट सेट में क्या है, फर्स्ट तो है जो, फर्स्ट इज अनस्ट्रेस्ड एंड सेकंड इज स्ट्रेस्ड, ओके। और राइटर्स ने कई लिटरेरी डिवाइसेस का, जैसे शजोरा का यूज किया गया है। शजोरा का यूज कौन सी जगह किया गया, आई विल जस्ट टेल यू वेयर ही यूज शजोरा, मतलब विदाउट पोज के लाइन को कंटिन्यू करता है वो, मतलब लाइन को बीच में पोज करके रोक देता है। आई बिलीव हर, हियर ही आर यूजिंग सेजोरा, CESU, सेजोरा का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। और अलिट्रेशन यूज़ किया गया है, कपलेट्स का यूज़ किया गया है, और भी कई चीज़ों का यूज़ किया गया है, ओके। लेट्स, आई विल रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम हियर, ओके। इन द नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस। अब इस सोनेट में किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। द सोनेट लव दे आर लाइंग, वो इस सोनेट में बताया गया है कि वो एक दूसरे की लाइंग का झूठ बोल रहे हैं, वो एक दूसरे से लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। दे आर लाइंग टू ईच अदर, दे आर प्रिटेंडिंग कंटिन्यूसली, रिलेशनशिप सर्वाइज थ्रू द म्यूचुअल डिसऑनेस्टी, उनका जो रिलेशनशिप है ना, वो उनकी जो म्यूचुअल डिसऑनेस्टी, गैर ईमानदारी है, उस चीज़ के बाद भी उनका क्या चल रहा है, वो जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है। इस पोएम का मेन मैसेज क्या है, पीपल चूज कंफर्टिंग लाइज पेनफुल ट्रूथ्स। अगर आप किसी को अगर सत्य बोलते हो, इट मीन्स यू आर सेइंग ट्रूथ टू समवन, दैट पर्सन कैन बी अनहैप्पी विद यू। इफ़ यू आर टेलिंग देम लाइज एंड फॉल्स pretensions against that person, he could be happy with you, but at that time
no one wanted to listen, no one wants to listen a painful truth. That means at that time peoples want to live with a painful truth. They don't want to live with a painful truth, so that's why peoples are comforting in the lies. Okay, what we are discussing in the next lines. फर्स्ट क्वार्टियंस में एक्सप्लेन किया गया, लव को ट्रूथफुलनेस के बारे में बताया गया है, और जो स्पीकर का इंटेंशन है उस इंटेंशंस के बारे में क्या करता है स्पीकर, अपने इंटेंशंस के बारे में क्या करता है स्पीकर, अपना जो इंटेंशन है उसके बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है. ओके, थीम है सेल्फ डिपिक्शन एंड इमोशनल कंप्रोमाइजेज. सेकंड क्वार्टर्स में वो बात करता है किसके बारे में, अनटॉर्चर्ड यूथ के बारे में, अपनी लवर के बारे में, जो उसकी जो यंग एज है और उस टाइम पे जो इनोसेंट टाइम है उस एज के बारे में बात करता है वो. ठीक है, और एक्चुअली वो ही इज़ ओल्डर एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि एज के साथ साथ ही वॉज ग्रोइंग ओल्डर एंड एक्सपीरियंस ही ऑल्सो अबाउट हिज एज एंड विजडम at the during the time of when age grows every peoples get experienced and get wisdom. Okay, you will read literary devices. pun मतलब it means writers using double meaning in the poem. how he is using मतलब वो लाई भी है, सही भी बोल रही है और झूठ भी बोल रही है इस चीज़ के बारे में. और कपलेट में क्या एक्सप्लेन, कपलेट में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस, कपलेट में किस चीज़ के बारे में बताया, कंफर्ट के बारे में, एक दूसरे झूठ बोलने के बाद दे आर फीलिंग कंफर्ट टू ईच अदर, हाइड ईच अदर्स फॉल्ट्स, एक दूसरे के फॉल्ट को छुपा रहे हैं, रिलेशनशिप सर्वाइव कर रहा है बिकॉज ऑफ इल्यूजन के कारण, एक दूसरे के इल्यूजन के कारण उनका क्या कर रहा है, रिलेशनशिप क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है. लव इज अ समटाइम्स बिल्ट ऑन प्लीजिंग लाइज रादर देन हार्श ट्रूथ. एट द समटाइम्स फाइनल मैसेज, व्हाट इज द फाइनल मैसेज ऑफ द पोएम, फाइनल मैसेज ऑफ द पोएम इज at the time, at the present time and at the time of Elizabethan society, peoples are saying lie to their beloved. At the in parallelly at present time in modern era, peoples are living with different peoples. They are lying to each other. They are pretending themselves that they are saying truth to his or her beloved, but they are also lying to each other. They both know this thing that they both are lying to each other, but rather than painful truth, they are living with a false and lies. Okay, this is the final message of the poem. What is the major themes? Major themes is love and depiction, appearance and reality, human weakness, painful truths के बारे में बात की, emotional comforts के बारे में बात की है, और एजिंग एंड इनसिक्योरिटी के बारे में, पोइट अपनी एज को छिपा रहा है, और लूजिंग अट्रैक्शन, जो उसकी प्रेमिका है जो सत्य नहीं बोल पा रहा है. इफ़ ही सेज ट्रूथ टू हिज बिलवड ही कैन लूज हिज हर बिलवड. लिटरेरी डिवाइस आयरनी, स्पीकर नोज दैट ट्रूथ एक्ट डिफरेंटली. आई डू बिलव हर ट्रूथ, आई नो सी लाइज, क्रिएट्स ड्रामेटिक. वो जानता है कि वो, ही नोज दैट सी इज लाइंग ट्रूथ, बट she never says that you are lying truth. That means it created dramatic irony. Okay, it's a created dramatic irony. Next, pun is lie मतलब depiction, lie with physical immaturity, physical intimacy, physical with their physical intimacy के interactions में वो क्या बोल रहा है कि you are lying to me, you are never physical intimate with other someone else. Lies has two meanings: speak falsely or sleep with someone. In the poem, poet talking about two type of lies. First, you are speaking lies or sexual intimacy about someone else or his or her beloved. Tone is humorous, realistic, slightly cynical. Paradox, relationship survives because of dishonesty. मतलब it is creating structure of the sonnet. 14 lines सोनेट है, 3 क्वार्टेन्स है. ठीक है, 3 लाइन के क्वार्टेन्स हैं, एक कपलेट है जो एंड में. ठीक से, टेक्स्ट लाइन्स दिस लाइक क्वार्टेन्स. ओके, और राइम स्कीम ऑफ द पोएम ए बी. फर्स्ट 2 लाइन्स ट्रूथ एंड यूथ, बोथ आर फॉलोइंग व्हाट, मतलब फर्स्ट 3 लाइन्स इज ट्रूथ, लास्ट के वर्ड्स ट्रूथ. आई विल ओपन द पोएम एट द स्क्रीन. ओके, first you see this one. Okay, first word is truth, first lines truth
second is lies, and third is youth. Truth or youth, both are matching. It means here is the A and A. Okay, and third and fourth lines are similar, or have a similar rhyme scheme. It means lies and subtitles. Subtitles, it means it's following B, A B A B, and the fifth and seventh lines are will be same, C C, and sixth and eighth line will be follow the same rhyme scheme, D D, and ninth line E, and 11th line E, and 10th line F, and 12th line follow the F, and last two couplet is GG. Okay, this is the rhyme scheme of the poem. A B, ठीक है, C D, E F और G. Most of the poems of Shakespeare follow the same rhyme scheme because of he follow the Shakespearean rhyme scheme or English sonnet or the Italian critical appreciation. It presents the realistic love, avoids the artificial romanticism. He does not express lying expression of truth. Shakespeare explores psychological deeply, psychology के बारे में बात करता है instead of flow the humans. Most of the quotations that according to the point of view, I do believe her, she knows she lies, he knows she lies. Self depiction के बारे में बात कर रहा है, therefore I lie with her and she with me. Pun or meaning or mutual dishonesty, and in our faults by lies fluttered me. प्रोटेक्ट फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर ये. और इसकी समरी क्या है? समरी इज द पोएम इज जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट द स्पीकर नोज हिज लवर्स लाइज. स्पीकर जानता है कि जो उसकी प्रेमिका है उससे झूठ बोल रहे हैं, बट सी प्रिटेंड एंड ट्रस्ट हर, वो उसको बचाता है और उस पर विश्वास करता है. सिमिलरली सी लाइज अबाउट ऑन एज, वो उसकी उम्र के बारे में झूठ बोलती है, एक्सपीरियंसिंग और उसके अनुभव के बारे में. बट लवर्स कंटिन्यू, बट वो एक दूसरे के रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हैं. और म्यूचुअल डिपिक्शन के बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं. मैं डैमेज देयर लव, उनका जो म्यूचुअल डिपिक्शन है ना, वो क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है उनके प्रेम को. सो दैट इज वाई दे बोथ आर स्पीकिंग ट्रूथ टू ईच अदर रादर देन स्पीकिंग लाइज टू ईच अदर. ओके, नाउ आई विल जस्ट डिपिक्ट इट. In the poem, writer think about how they are thinking about the life and how is life going on through in present era. Everyone is speaking lies to each other, but in reality, they are not speaking lies. In real world, everyone is speaking lies to each other. They want after the line. They both beloved knows that they are lying to each other, but rather than that painful truth, they live with that lies. In the poem there are two type of lies. First is the lying with the tongue, and second is sexual intimacy. Does she is speaking, वो क्या कहता है कि पहला तो क्या है, तुमने किसी और के साथ रिलेशन बनाया तो उसके बारे में आप झूठ बोल रहे हो, और दूसरा तुम मेरे अलावा भी किसी और के साथ लव रिलेशनशिप है, उसके बारे में वो क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है. तो इन सब चीज़ों के बारे में राइटर क्या करता है? बात करता है. और इस पोएम के बारे में वो एक दूसरे की डिसऑनेस्टी और लव के बारे में बात करता है, और जो पैशनेट फीलिंग्स है उनकी, और जो बिल्कुल सत्यता है एक दूसरे को लेकर, और एक दूसरे के प्रति जो डिसऑनेस्टी है कहीं वो सत्यता दिखा रहा है, और वो अपने बिलोड पर ट्रस्ट कर रहा है, उस ये जानते हुए भी कि सी इज लाइंग टू मी. हियर दैट पोएम्स एंड्स. द फाइनल टोन ऑफ द पोएम इज that is the about honesty and lying to each other, and both have a mutual relationship with each other with falsifying and painful truth. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you for watching the video. Subscribe and share the channel. Thank you for watching. Jai Hind.